Okay. See, we started with final accounts, right? Yes. अभी we did second sum, right? All of you look at sum number 3. Quiet. Third sum ले लो. 65. Page 65, sum number 3. हाँ दो सम. छोटा सम है वो हो जाएगा. See, page 65. Sum number 3, mark first. ABC Trading Company. Trial balance as on 21st December. पहले mark कर लो. Backdates are P&L debit. So debtors, answer first. Assets, purchases, TD, cash in hand, asset. 10% trade investments, assets. Motor car, assets. Shut your mouth now. Furniture and fixtures, assets. Stock in trade on 1194 is stock. Opening stock, so that is trading debit. Discount allowed or received? Allowed a P&L debit. Interest paid or received? Paid a P&L debit. Salaries? P&L debit. Sales returns? Less from sales. Land and buildings? Assets. Plant and machinery? Assets. Wages? Trading debit. Carriage outwards? P&L debit. Rent rates and taxes? P&L debit. This will correct. Traveling expenses? P&L debit. Bills receivable? Assets. Drawings of a? Less from capital. Clearing charges? Trading debit. Test में भी पूछा था. Clearing or trading, forwarding or P&L. General expenses? P&L debit. Fire insurance premium? P&L debit. Printing and stationery? P&L debit. Carriage inwards? Trading debit. Advertising expense? P&L debit. Suspense account. For the first time, you are coming across an item called suspense. This is when you do not rectify the errors after trial balance and carry on with the final accounts. So where do you put suspense if it comes in the final accounts part? If you remember, I discussed once, yeah. If it is on debit side, you put it under assets. If it is on credit side, you put it under liabilities. But, there has been a trend in the past that whenever there is an item of suspense account, they give you an adjustment which is actually a rectification entry involving suspense. कुछ casting error दे देगा, कुछ posting error दे देगा, one-sided error देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये suspense nullify हो जाता है. ये suspense क्या हो जाता है? Nullify हो जाता है. Is this clear? So remember, suspense का कोई rectification part है तो ठीक है. नहीं है तो as it is लेके जाना उसको asset में. आपका कुछ तो टैली हो जाएगा. फिर आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको रेक्टिफाई करोगे. जो हम लोग करते हैं ना, रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. ओके, तो फिलहाल सस्पेंस अगर डेबिट में है तो एसेट और क्रेडिट में है तो लायबिलिटी. ठीक है. सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल, लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेजेस. RDD, which RDD is that? ORDD, बराबर है, less from formula. Advance from debtors, liabilities, discount allowed, received, so P&L credit. Interest on investments, P&L credit. Bank overdraft, liabilities. Capital of A, liabilities 15%, bank loan, liabilities 12%, Sanjay's loan, liabilities. General reserve, liabilities, internal profits, right? There are three hidden adjustments, one for trade investment, one for bank loan, one for Sanjay's loan.
Stock in trade amounted to 25,000. Which stock is that? What are the two effects? Trading, credit and asset. Sales includes 2,000 rupees wrongly debited to a customer Mr. X. These goods have been taken away by Mr. A for personal use. Read it once again. Sales include 2,000 wrongly debited to a customer Mr. X. These goods have been taken by Mr. A for personal use. पहले क्या करोगे? सेल्स में से हटाओगे और डेटर्स में से भी हटाओगे, क्योंकि डेटर को भी डेबिट किया और सेल्स में भी डाला हुआ. हटाओ और ड्रॉइंग्स में डालोगे और टीसी में डालोगे, तो टोटल 4 इफेक्ट होंगे. ऐसा नहीं बोला है कि खाली गुड्स इंक्लूडेड इन डेटर आर ड्रॉइंग्स. नो, क्या बोला ध्यान से पढ़ो. सेल्स इंक्लूड goods debited to a customer which were actually withdrawn for personal use. तो करना था drawings to purchase, कर दिया गलती से debtor to sale. करना था drawing to purchase, कर दिया debtor to sale. reverse is sale to debtor, rectified sale drawing to purchase to debtor. 4 इफेक्ट आएगा. क्यों 4? वापस पढ़ो. सेल्स में इंक्लूडेड है, डेटर में भी इंक्लूडेड है. हटाओ. फिर तो अपना गुड्स विड्रॉन का एंट्री. व्हाट इज गुड्स विड्रॉन? ट्रेडिंग, क्रेडिट एंड लेस फ्रॉम कैपिटल. समझ में आया? अगर ऐसा दिया होता, गुड्स विड्रॉन बाय ए वेर इंक्लूडेड इन डेटर्स, गुड्स विड्रॉन बाय ए वेर इंक्लूडेड इन डेटर, तो डेटर से माइनस और ड्रॉन, तो 2 ही इफेक्ट होगा. इधर सेल्स में भी पड़ा और डेटर में भी पड़ा, तो 4 इफेक्ट है. फर्क समझ में आया? तो डेटर वाला हमने इसमें किया था 12th स्टैंडर्ड में. एबीसी वाला जो सम था 3 पार्टनर वाला, ए और सी ने 250 का निकाला था, अगर याद होगा तो 250 वो डेटर में पड़ा था. तो डेटर से हटाया और ए और सी में डाला. सेल्स में डाला है और डेटर भी दिया है, डेबिटेड टू डेटर, दोनों भी दिया है. दिख रहा है? सेल और डेटर दोनों में पड़ा है. पढ़ो. सो दोनों में से हटाना है और कैपिटल से माइनस और टी से. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट. Purchase book has been undercast. What's your rectified entry? Do you have purchase? Yes. Purchase में ऐड करना है. और do you have suspense? Yes. इससे माइनस करना है. तो ऐसा नहीं कि सस्पेंस नील कर देने का, वो दिखाने का. सस्पेंस एसेट में दिखाने का, फिर उसमें से अंडरकास्टिंग एरर फिर नील होगा. तो इसके बाद सस्पेंस बचेगा नील हो जाएगा. I told you, whenever you have suspense, you search for an error, which is the one-sided error. So you can rectify it with that. Land and building is to be appreciated by 5%. Add to asset and P&L credit. Okay, this one is important. Interest paid includes 2,000 towards Sanjay's loan and the balance towards bank loan. If you check, make a note for interest. What is the total amount of interest? 3,500. 3,500. 3,500 है ना ऊपर. Paid interest देखा. स्टॉक के नीचे डिस्काउंट, उसमें नीचे इंटरेस्ट. उसमें दिया है कि 2,000 is paid towards Sanjay's loan and the balance is towards बैंक लोन. मिला? और बचा कितना? 1,500 is बैंक लोन. ये तो स्प्लिट दिया है. तो when you write the interest, no need to write full interest now. और सीधा स्प्लिट करके ही लिखना. When you write in the sum, राइट लाइक दिस. ये नोट बना लिया आपने. तो संजय लोन का इंटरेस्ट 2,000 है, बैंक लोन का 1,500 है. ये पेड है कि पेबल है? पेड है. ये ट्रायल बैलेंस वाले का स्प्लिट दिया है. इज इट क्लियर? तो स्प्लिट पहले नोट में दिखा दो, ऊपर सीधा अलग अलग ही दिखा, फिर हिडन करेंगे हम लोग. मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. कुछ याद आया? कल भी एक किया था. That was after charging such commission. This is before charging such. So, is there any need to make any note? कैसे करेगा? जो भी नेट प्रॉफिट आए उसका 5% ले लो, क्योंकि वो बिफोर चार्जिंग वाला ही नेट प्रॉफिट है. आफ्टर चार्जिंग वाला होता तो आप नोट बनाते, इक्वेशन बनाते.
ये आफ्टर वाला नहीं, कल हमने आफ्टर वाला किया था, ये किसका है? बिफोर वाला। तो जो नेट प्रॉफिट आया सीधा उसका 5 इट इज क्लियर। इफेक्ट क्या होगा मैनेजर्स कमीशन का? पीरियड डेबिट और लायबिलिटी देना बाकी। बिफोर चार्जिंग मतलब अभी तक कमीशन चार्ज नहीं किया, वो वाले नेट प्रॉफिट का देना बाकी, आउटस्टैंडिंग। पेड होता तो दिख जाता, पेबल है। सो पीरियड डेबिट और लायबिलिटी कमीशन। गुड्स वर्थ 5000 were sent on approval basis, CP 4000 है। Only 40% of the goods were approved before year end. Make a note. Goods sent on sale or return. कितने का गुड्स भेजा था? 5,000। उसमें से 40% हो चुका है ना अप्रूव, कितना अप्रूव है? Only 40% were approved, बराबर है? तो बचा कितना? 60%। तो सेल प्राइस ऑफ 60% इज 3000। कॉस्ट 4 था, उसका भी 60% ले लो, तो बचा कितना? 2400। अब जो अप्रूव हो गया है उसका कुछ करना है? वो तो सेल्स में आ चुका है, ऑलरेडी सेल्स की एंट्री की हुई है आपने। जो अप्रूव हो चुका है उसका कोई टेंशन नहीं है। तो लोचा किसका है? अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड का क्या सीन है? अज्यूम क्या कर रहे हो आप? ईयर एंड पे आ गए हो, यानी कल किया था सेल और रिटर्न की एडजस्टमेंट, तो क्या सोचने का ऑन ईयर है? सेल है कि रिटर्न है? तो एक तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो एक इफेक्ट क्या है? लेस फ्रॉम सेल एंड लेस फ्रॉम डेटर। व्हिच प्राइस? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? 3000। दूसरा स्टॉक में भी करना पड़ेगा एडजस्ट। क्यों क्यों क्यों? फिजिकली ये गुड्स हमारे पास नहीं है, काउंटिंग के वक्त ये गुड्स हमारे स्टॉक में नहीं है। हमारा स्टॉक ऑलरेडी काउंट हो चुका है। 25,000 कुछ तो दिया है स्टॉक, कैन यू सी दैट? वो 25,000 क्लोजिंग स्टॉक है आपका। तो 25,000 में ये स्टॉक पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड। तो add to closing stock, add to closing stock at which price? Cost price. Add to closing stock, add to closing stock cost price. Is this clear? Yeah. So trading credit and assets. Closing stock के नीचे add to closing stock, add to closing stock cost price. This is just for your understanding. This is the effect. ये कोई नोट में डालने की जरूरत नहीं, ये वाला बस कर दिया इना। बट मेरा बोलने का मतलब था यू विल डू दिस एंट्री ओनली फॉर अनअप्रूव्ड गुड्स। जो अप्रूव हो चुका है उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, या जो रिटर्न भी हो चुका था उसको भी कुछ करने की जरूरत। रिटर्न भी हो चुका है, उसका भी एंट्री हो गया। अब करना क्या? जो लटक रहा है। हाँ, एंट्री क्या आएगा? 2 एंट्री आएगा। एक तो सेल्स रिटर्न टू डेटा, क्योंकि रिटर्न अज्यूम कर रहे हो, और स्टॉक को बढ़ाने का है तो स्टॉक टू ट्रेड। स्टॉक टू ट्रेड, तो दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करो। एसेट वाले में भी ऐड करो, ट्रेडिंग वाले में भी ऐड करो। बात समझ आई? सेल और डेटर से माइनस और दोनों स्टॉक में ऐड। बट सेल और डेटर से माइनस कौन सा प्राइस? सेलिंग। तो वो सेलिंग प्राइस पे बेचा है, तो रिटर्न भी सेलिंग प्राइस पे। और ऐड टू स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। ऐड टू स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। इज दिस क्लियर? हेलो, अभी 3 हिडन एडजस्टमेंट है, ये इसमें डाउट है अभी भी? ये स्टॉक में कब ऐड करते हो आप? एंड ऑफ द ईयर वाले में। बिटवीन द ईयर में कभी स्टॉक को छेड़खानी करने का नहीं, वो आने ही वाला है। ये स्टॉक वैल्यू हो चुका है, इसके लिए करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 10% ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे। बोलो क्या करोगे? सीसीसी करोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने समय का कैलकुलेट करने का? 12 मंथ्स। कितना होता है बेटा? 3000। चेक हैव यू रिसीव्ड एन इंटरेस्ट? 2500 मिला है, रिसीव में देख लो, मिला है? तो मतलब 500 रुपया क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रिसीवेबल। इज दैट क्लियर?
समझा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल. Okay, so that is add to interest and add to investments. What happened? Add to interest and add to investments. Cool. Then आपका एक दो और नोट्स बनेगा. एक 15% बैंक लोन का बनेगा. 15% बैंक लोन is taken on 1994. मिला? फर्स्ट स्टेप इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. कितने टाइम का कैलकुलेट होगा? 4 months. 70,000 का लोन है, उस पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Why 4 months, guys? December. It's December ending. So September, October, November, December. September, October, November, December. करो 3,500. इतना पे करना है. How much have you actually have paid? 1,500 की 3,500. 3,500 है ना? वो दोनों का है. तो बैंक लोन का उसमें 1,500 है. तो 2,000 becomes outstanding interest. That's your working note number 4. And working note number 5, interest on Sanjay's loan. So 12% संजय लोन. हर एक सब 3 साइड पे करना बेटा, नहीं तो होने वाला है नहीं बेटा. सो इंटरेस्ट ऑन संजय लोन, डेट है संजय लोन का 31/10/94. सब अतरंगी डेट्स इधर ही आते हैं. तो 31/10/94 है. तो कितने का लोन है आपका? 50,000. 50,000 पे 12% फॉर 2 months, नवंबर एंड दिसंबर. I think 1,000. And check how much have you actually paid. ज़्यादा पे कर दिया है. Oh my God. So you are paid 2,000. It means it is outstanding or prepaid. For the first time you have come across a prepaid interest. Prepaid interest क्या करेंगे? Less from interest and है. सिंपल है, वही चीज है, खाली डेट में समझना जरूरी. हाँ, इंटरेस्ट पहले ही अलग अलग करके दिखाने का, और इंटरेस्ट से माइनस और एसेट. इंटरेस्ट ऑन संजय लोन अलग, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलग. बैंक लोन वाले पे ऐड होगा आउटस्टैंडिंग, संजय लोन वाले पे माइनस. समझा कि नो? अभी डॉट्स डाल दीजिए, काफी सारे होंगे. सबसे पहले ना सेल्स पे एक डॉट, 2 डॉट, माय बैड, 2 ना. सेल्स पे 2 डॉट. वो तो है ही, सेल्स पे रिटर्न तो लिख ही देते, वरना अदरवाइज थी. सेल्स पे 2 डॉट. देन डेटर पे कितना? 2. सॉरी, व्हाई 2 डॉट्स ऑन डेटर्स? एक वो सेल और रिटर्न वाला है, और एक ऊपर वाला सेल वाला, ड्राइंग्स वाला. 2 डॉट्स डेटर पे, ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 डॉट. परचेज पे 1 डॉट. परचेज पे क्यों दो? परचेज पे रिटर्न मत दो. परचेज पे 1, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 मिला. सस्पेंस पे भी 1 डॉट. परचेज पे 1, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1, सस्पेंस पे 1. फिर मैं करूंगा सॉल्व. संजय लोन नहीं, सॉरी नॉट संजय लोन, बैंक लोन पे 1 डॉट. बैंक लोन पे 1 डॉट, काय को हिडन आउटस्टैंडिंग है. इन्वेस्टमेंट्स पे 1 डॉट, हिडन है, मिला. इन्वेस्टमेंट पे 1 डॉट. और क्लोजिंग स्टॉक नीचे मिलेगा उस पे डॉट. क्लोजिंग स्टॉक नीचे मिलेगा उस पे डॉट. ओके, 2 डॉट क्लोजिंग स्टॉक. संजय पे क्यों डॉट नहीं चाहिए? संजय पे कुछ प्लस माइनस करना है इधर. प्रीपेड के 2 इफेक्ट क्या होते हैं? इंटरेस्ट में से माइनस और एसेट. तो इंटरेस्ट पे 2 डॉट डाल के रखो, अपने को स्प्लिट करना है. इंटरेस्ट पेड है ना, उस पे भी 2 डॉट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड पे 1 डॉट. इंटरेस्ट पेड पे 2 डॉट और इंटरेस्ट रिसीव्ड पे 1 डॉट.
हाँ वही इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, उस पे डॉट. Once again I'll repeat, देख लो. Sales 2 dots किया, debtors 2 dots किया, कैपिटल पे भी 1 डॉट. हाँ ड्राइंग से होगा. कैपिटल पे भी 1 डॉट, सस्पेंस पे 1 डॉट, परचेज पे 1 डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 डॉट किया. फिर बैंक लोन पे 1 डॉट, इंटरेस्ट और डेबिट पे उस पे 2 डॉट, इन्वेस्टमेंट पे 1 डॉट, इंटरेस्ट और क्रेडिट पे उस पे 1 डॉट किया. और क्लोजिंग स्टॉक नीचे मिलेगा उस पे 2 डॉट. हाँ क्या ड्राइंग्स पे डॉट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा कैपिटल से उड़ा दो ना. इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ड्राइंग्स यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल. बराबर है, बट इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ड्राइंग्स यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल से किया. चलो आपके सामने 15 मिनट में पूरा सम होना चाहिए. 15 मिनट्स बेटा, आपको स्टार्ट टू एंड पूरा सम 15 से 20 मिनट में करना है. डिस्कशन का 10 मिनट तो गया. स्पीड बढ़ाओ तो होएगा. हाँ लेस फ्रॉम सस्पेंस वो लिखना वही है. परचेज अंडर डेबिट में છે ને તો એસેટ માં નાખવાનું, ક્રેડિટ માં હોય તો લાયબિલિટી માં. યસ તો ગુજરાત आई सॉल्व इट बट यू ट्राई. हाँ परचेज तो क्रेडिटर का है ना, तो सस्पेंस कैसे. परचेज अंडर कास्टेड लिया है ना, तो परचेज अकाउंट का टोटल कम है, तो परचेज को बढ़ाना पड़ेगा और आपका सस्पेंस से घटाना पड़ेगा. क्रेडिटर वाला कुछ नहीं है इसमें, पोस्टिंग एरर नहीं है, कास्टिंग है. खाली परचेज में टोटल का गड़बड़ है. सस्पेंस से बाहर लिखेगा क्या, परचेज अंडर कास्टेड. दोनों में लिखना वही है, परचेज अंडर कास्टेड, एड टू परचेज एंड लेस फ्रॉम सस्पेंस. वो अलग से आता है, 4 लेस फ्रॉम से लेस फ्रॉम होता है. हाँ वो या ड्राइंग्स ये वो भी है, ड्राइंग्स का तो बुक्स एक वर्ड्स में आप देख सकते हैं. चारों चीजें वही है. पहले माइनस जो लॉन्ग जो डेबिट हुआ था वो भी ऑर्डर में लेना चाहिए. अरे और दूसरा है ना माइनस सेलो रिटर्न और ड्राइंग्स. चालू करो. सेल और रिटर्न का क्या सीन है, आपका गुड्स आपने बेच दिया है, सेल्स का एंट्री हो गया 5,000 रुपए के भाव सेलिंग प्राइस. डेटर के पास चॉइस है ईयर एंड पे, शायद वो अप्रूव करे शायद वो रिजेक्ट करे. तो आपको दिया 40% अप्रूव कर लिया मतलब अलग से कुछ नहीं करना, सेल तो एंट्री मार दिया, ठीक है. 60% उसका कोई जवाब नहीं आया और ईयर एंडिंग आ गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये गुड्स वापस आ जाए. 15 दिसंबर को भेजा था, 1 महीने का टाइम था, 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग आ गया. तो हमने फोन किया कि भाई क्या सीन है, तो बोला पता नहीं, मैं 15 तारीख तक बताऊंगा. तो हम लोग तो 31 दिसंबर को फाइनल अकाउंट बनाने का, तो हम लोग क्या सोचेंगे, वो रखेगा कि रिटर्न करेगा. रिटर्न करेगा, अज्यूम इट इज रिटर्न. तो रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न की एंट्री मार दो.
तो सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स से माइनस, डेटर से माइनस। कौन सा भाव? 5,000 सेलिंग प्राइस। अब रिटर्न तो सोच लिया, और स्टॉक का क्या सीन है? हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे काउंट करते हैं? फिजिकली गोडाउन में जाते हैं, काउंट करते हैं, 500 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय एसपी, और फिर लोअर प्राइस। वो स्टॉक आ गया अपना 25,000। बट 25,000 में ये जो सेल और रिटर्न वाला गुड्स है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो डेटर के पास पड़ा है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? वापस आने वाला। तो ये स्टॉक फिजिकली उसके पास है, लेकिन ओनर हम है, तो हमारे स्टॉक में इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, 4 इफेक्ट। लेस फ्रॉम सेल, लेस फ्रॉम डेटर, ऐड टू स्टॉक, ऐड टू स्टॉक। बट ऐड टू स्टॉक एट विच प्राइस? 5,000 और 4,000, 4,000 कॉस्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो दोनों जगह 4,000। सर बैलेंस 0 आ रहा है तो डेबिट नहीं होगा। हाँ, डेबिट 0 आ रहा है तो भी डेबिट, नेगेटिव आ रहा है तो डेबिट। 0 आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट में लिखो नील नहीं है। हाँ कर क्या हुआ? सर वो इंटरेस्ट को जो रिस्पेक्टेबल एक्सपेंस है उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो हाँ, तो उसको संजय के लोन में डायरेक्ट ऐड करते हो, वो बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या? जो इंटरेस्ट है डेबिट साइड है तो उसका क्या करना है? मतलब जो रिस्पेक्टेबल एक्सपेंस लोन है उस पे ऐड करना है। डेबिट वाला इंटरेस्ट है ना, ये लिख रहे हैं, ये लिख और अलग अलग इंटरेस्ट, इसमें माइनस करना है, प्रीपेड इसमें ऐड करना है। जब वो ये संजय लोन के उस पे डायरेक्ट एडजस्ट करना है। ये पेड है, इसका टुकड़ा कर दिया। इमेजिन करना, ट्रायल बैलेंस में 2 इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन संजय लोन, इंटरेस्ट ऑन दो अलग अलग रेट है। हाँ, और फिर उस पे एडजस्टमेंट, एक पे प्रीपेड माइनस करो, एक में आउटस्टैंडिंग ऐड, और फिर लोन में एक ऐड करो और एक एसेट में। अलग है। चालू है।